વૃક્ષાસન થી માંડીને ગરુડાસન, તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, પાદ હસ્તાસન, ચક્રાસન, સૂર્ય નમસ્કાર, ઘણા બધા ઊભા થઈને આસનો, પછી બેસીને, ઊંધા સૂઈને, સીધા સૂઈને, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ, આ તો બધા આજે કરીશ. અને એ સરળ આસનો સાથે સાથે આજે કઠિન આસનોનો પણ અભ્યાસ બે એક સાથે થશે. એક બાજુમાં સરળ આસનો અને બીજી બાજુમાં કઠિન આસન. અને આજે આખો વિષય છે योगा फॉर लेडीज, योगा फॉर गर्ल्स, मातृशक्ति के लिए योग. इसमें वृक्षासन से शुरुआत करके इधर बेटियां नटराज आसन, पूर्ण नटराज आसन करेंगी आरती जी के साथ, पतंजलि विश्वविद्यालय की बालिकाएं. और नटराज आसन, पूर्ण नटराज आसन एक साथ, कठिन आसन અને સરળ આસન. શરીરનો સંતુલન, ઇન્દ્રિયોનો સંતુલન. નટરાજ આસન, પૂર્ણ નટરાજ આસન, પછી ધ્વજાસન, त्रिविक्रमासन. एक तरफ कठिन आसनों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ सरल आसन. आसन तसल्ली से करने चाहिए, धैर्य से, एक अनुष्ठान की तरह, और यथाशक्ति करने चाहिए, जिसका जैसा सामर्थ्य. योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक व्यायाम, जिससे जितना बन पाए उतना करें, जेनाथी जेटलो थाय એટલો કરી લે. पाद हस्तासन. एक बाजू में कठिन आसनो तमे જોઈ રહ્યા છો. નટરાજ આસન, પૂર્ણ નટરાજ આસન, ધ્વજાસન, ત્રિવિક્રમાસન, પછી ભૂનમનાસન અને હનુમાન આસન તમને જોવામાં મળશે. પછી બક ધ્યાન આસન. એવા કઠિન કઠિન આસનો. અને આ સરળ આસન. सूक्ष्म व्यायाम पण जे सरस रीते करी ले, અને સૂર્ય નમસ્કાર પણ કરી. સૂક્ષ્મ વ્યાયામથી માંડીને સૂર્ય નમસ્કાર સુધી જેનાથી જે થાય એ ધ્યાનથી કરી લેજો. જે કઠિન કરી શકે તો કઠિન આસન જમણી બાજુમાં થઈ રહ્યા છે. સૂર્ય નમસ્કાર અને 5 આસનો તો બાળકોથી માંડીને યુવતીઓ, બધા જ ભાઈ બહેનો, એ તો युवतियों માટે તો છે જ, बहनों के लिए तो है ही, भाई भी जो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन जो बचपन से करेंगे, एक एक मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट एक एक आसन धीरज के साथ. तो कोई रोग हो ही नहीं सकता, और कोई रोग हो गया तो टिकेगा नहीं शरीर में. माताओं बहनों को माइग्रेन पेन, सिर में दर्द, फिर पीरियड की समस्या है,
इनफर्टिलिटी से लेकर के तमाम रोगों के लिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। सर्वांगासन, हलासन। चक्रासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, उत्थित चक्रासन, जेनाथी जे थाय। बाळको तो खूब ज सरस करता होय, एवी फ्लेक्सिबिलिटी होय एमां। पश्चिमोत्तानासन। जिन माँ बहन बेटियों को पूर्ण स्वस्थ रहना है तो बचपन से ही अभ्यास करें। बड़ी उम्र में सूक्ष्म व्यायाम और सहज आसन जितने बन पाए उतने करें। अब बड़ी उम्र में तो आर्थराइटिस, सांधाમાં દુખાવો, રોમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, ગાઉટ, ઓસ્ટિયોપેનિયા, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, વાત રોગ સૌથી વધારે હોય મા બહેન બેટીઓમાં, માતૃસત્તામાં। અને જે બહેનોને આ વાત રોગ છે એ બધા પેડાનિલ ગોલ્ડ ભૂખ્યા પેટે ખાધા પછી, જમ્યા પછી ઓર્થોગ્રીટ, બહુ જ હાડકા વીક હોય તો સ્પિરુલિના, ઇમ્યુનોગ્રીટ, લાક્ષાદિ ગુગ્ગુલ, યોગરાજ ગુગ્ગુલ, ગોક્ષરાદિ ગુગ્ગુલ, રીડ કરોડરજ્જુમાં દુખાવો થતો હોય તો ત્રદશાંગ ગુગ્ગુલ, આ બધું લેવું પડે, નહીતર સૂક્ષ્મ વ્યાયામ 10-10, 20-20, 25-50, 100-100 વાર, અને જેને આર્થરાઇટિસ થઈ જાય તો 200-500 વાર અમે કરાવીએ છીએ એક સાથે હાથના પગના। આમ જેને सांधाમાં દુખાવો હોય તો એલોવેરા 200 ગ્રામ, અંકુરિત મેથી 20 ગ્રામ અને હળદર આમ કચ્છી હળદર 10 ગ્રામ, એક ચૂટકી હિંગ, એક ચૂટકી જીરા, અજવાઈન એક ચૂટકી અને 1-2 ચમચ ગાયનું ઘી લઈને એમાં કુંવારપાઠાની સબ્જી, રાગી અને બાજરાની રોટલી, બસ એ જ ખાવાનું, બાકી કશું નહીં ખાવાનું। અને પેડાનિલ ગોલ્ડ ઓર્થોગ્રીટ, એનાથી 100% આ વાતરોગ સારા થઈ જાય। આવજો, વાત તો નાનકડી છે પણ એનું પરિણામ બહુ મોટું છે। સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરવાથી અને નાનકડી સાવધાનીઓથી અસાધ્ય જે જોઈન્ટ પેન હોય, આર્થરાઇટિસ, રોમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ હોય એ મટી જાય છે। બટરફ્લાય। પછી બહેનોને 3 મોટી સમસ્યાઓ હોય, એક કમરનો દુખાવો, બીજી ઓબેસિટીની પ્રોબ્લેમ, ઘણા બધા ઓપરેશનો થાય, અને ડિલિવરી પછી હાર્મોનલ ચેન્જથી, પીરિયડની પ્રોબ્લેમથી ઘણા બધા આખા ઘર પરિવાર સંસારના સ્ટ્રેસમાં તો બહેનો વધારે પોતાના ઉપર લેતી હોય, એમાં ખૂબ જ ધીરજ હોય, પણ ઘણી વાર સ્ટ્રેસ અંદર એટલું વધી જાય છે એના કરતાં શરીર વધી જાય છે। તો ઓબેસિટી અને કમરનો દુખાવો, અને અત્યારે તો ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર એ પણ ઘણું બધું લેડીઝમાં થઈ રહ્યું છે, અને થાઇરોઇડમાં તો સર્વાંગાસન, હલાસન, સિંહાસન, ઉજ્જાઈ અને કપાલભાતિ, આ 5થી 100% થાઇરોઇડ ક્યોર થઈ જાય। પણ જેને ઓબેસિટી હોય એ મા બહેન બેટીઓને ઓછામાં ઓછા 5 છે અભ્યાસ, સ્થિતકોણાસન, ચક્યાસન, ભુજંગાસન, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक अभ्यास ने ऊंडा श्वास साथ
100 बार आम करवा। तो स्थित कोणासन आचक्की आसन 100 बार 5-5 मिनट કન્ટિન્યુઅસ કરાવીએ છીએ અને એક જ દિવસમાં 1-1 કિલો વજન 2-2 કિલો વજન અમે ઉતારીએ છીએ। આ તો કઠિન આસનો કરી રહી છે બહેનો। जमनी बाजू में दाहिनी और बहनें कठिन आसन कर रही है। हम मोटापा के लिए माँ बहन बेटियों में बहुत बड़ी समस्या और माँ बहन बेटियों के लिए औषधियों में हमने नारी सुधा सिरप और नारी सुधा वटी और जिनमें इनफर्टिलिटी और किसी भी प्रकार का मातृत्व से संबंधित कोई रोग है तो संतति सुधा है। ये 2 अभ्यास बैठ करके, 3 अभ्यास सीधे लेट करके मोटापा कम करने के लिए। अर्ध हलासन, एक पैर से दोनों पैरों से, फिर पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लेडीज में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, कोलेजन की कमी हो तो उसके लिए कोलेजन ब्रश, वेज कोलेजन पाउडर भी हमने बनाया है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स, डेली एनर्जी और डेली एक्टिव, बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन, डेली एनर्जी और डेली एक्टिव। ये अर्धहलासन। पाद वृत्तासन में दोनों पैरों से अथवा एक पैर से। न्यूट्रिशंस की कमी होने से लेडीज़ को बहुत तरह की, किसी को विटामिन डी, किसी को B12, किसी को कैल्शियम, किसी को आयरन, किसी को ओमेगा की, किसी को कोलेजन की कमी से चेहरे पर झुर्रियाँ हो, ये सब होता है। तो कोलेजन प्रास से लेकर के सारे नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स, केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स के स्थान पर हमने हेल्दी विकल्प दिया हुआ है सब माँ बहन बेटियों के लिए। और वुमेन सुपर फूड, बच्चों के लिए किड्स सुपर फूड और जेंट्स के लिए मैन सुपर फूड। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये एक पैर से या दोनों पैरों से। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से। और ओबेसिटी के ये पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से, जिसको जितनी 5-5, 10-10 मिनट करा देते हैं। फिर बीच में रिलैक्स होने के लिए भी और कमर में दर्द के लिए मरकट आसन। मरकट आसन। मरकट आसन के 3 अभ्यास आराम आराम से। एक आसन 1 मिनट थी माड़ी ने 10 मिनट से, 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक किया जा सकता है। मरकट आसन के 3 अभ्यास। फिर उल्टी लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, बैठ के उष्ट्रासन, कमर दर्द के लिए। बताइए, जिनको डायबिटीज, पेट की खराबी, बहुत कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, एसिडिटी बहुत लेडीज को है, पवन मुक्तासन, हाइटसन, सर्विकल क्वाथ, ये अभ्यास। पीसीओडी के लिए, पीरियड के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। एक आसन ने 1 मिनट थी माड़ी ने। सामान्य रोग में 1 मिनट, વધારે છે રોગ તો 2 મિનિટ, મધ્યમ કોટીનો રોગ છે તો 5 મિનિટ અને અસાધ્ય કોટીનો રોગ છે નૌકાસન તો 10-10 મિનિટ કરવું પડે। 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, 5 મિનિટ, 10 મિનિટ સુધી એક આસનને અમે આમ કરાવીએ છીએ। નૌકાસન, પાદાંગુષ્ઠ નાસા સ્પર્શાસન।
સેતુબંધાસન. અને ઊંધા સૂઈને પછી જેને ઘૂંટણમાં દુખાવો હોય, કમરમાં દુખાવો હોય, એના માટે મકરાસન, ભુજંગાસન, સલભાસન, ધનુરાસન, ઉષ્ટ્રાસન. नानकड़ा योग करवाથી मोटी मोटी बीमारियों मटे છે. जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्भासन, धनुरासन मात्र इतना ही कर लेते हैं. धनुरासन भी नहीं हो पाए तो मात्र मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, भुजंगासन, सर्भासन, उष्ट्रासन आराम आराम से जितना हो जाए उतना ही कर ले. इसी से ही भयंकर कमर के दर्द दूर हो जाते हैं. पहले धीमे धीमे करवाना. फिर तेजी से कर सकते हैं. 10-20 बार, 25-50, 100 बार બોડીને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે, લંગ માટે, હાર્ટ માટે, મેરુદંડ માટે, આ શક્તિ માટે, જેનો બ્રેસ્ટ અને ચેસ્ટનો વિકાસ સારો નહીં થયો ને એના માટે ભુજંગાસન. એ શતાવર લઈ લે, શતાવર છોડ, ભુજંગાસન, સલભાસન. શતાવરથી આખા શરીર સ્વસ્થ, સુંદર, સુડોળ, આકર્ષક થઈ જાય છે. एक एक आसन ने 10-20 सेकंड थी प्रारंभ करीने अर्धी मिनट, एक मिनट, 2 मिनट करी शकाय सतत. જેને કમરમાં દુખાવો હોય તો ઉષ્ટ્રાસન. चलो अब तुम भी उष्ट्रासन कर लो. पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन दोनों ही जबरदस्त हैं. कमर पूर्ण उष्ट्रासन में सिर पीछे एड़ी तक आ जाता है. इसमें हमारी विश्वविद्यालय की बेटियां भी, आरती जी भी, हमारी पूज्य साध्वी बहनें भी, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, देवी योगिनी जी, हर्ष जी, सुरभि जी, जिससे जितना हो पाए. पीछे झुक गए, आगे तो सब झुक ही सकते हैं. आगे पीछे बराबर झुकने से बॉडी का बैलेंस भी बराबर बना रहता है. मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन में आगे झुक जाते हैं. मंडूकासन और शशकासन, इसमें तो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं. शशकासन, कपालभाति नहीं साथे करो. कपालभाति के साथ करते हैं तो और अधिक लाभ होता है. पीसीओडी से लेकर, पीसीओडी में सिस्टोग्रिट खाली पेट, खाने के बाद काचनार, गुग्गुल काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधिकावती, खाली पेट लहसुन 1-2 कली, 1-2 ग्राम हल्दी अथवा कर्क्यूमिन गोल्ड. वापस जिनकी नाभि धरण की चोटी खिसक जाती है तो सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन दोनों ही नाभि के लिए, जिनकी नाभि धरण दिख जाती है, बहुत उपद्रव होते हैं. सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन बहुत जबरदस्त.
और आगे झुक गए तो योग मुद्रासन। योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, સરળ આસનો પણ કરી લે, એનાથી પણ ફાયદો થાય. બસ જેનાથી જે થાય એ કરી લેજો. જે આવી રીતે યોગ કરશે પછી એને કોઈ રોગ નડશે નહીં. कपालभाति के साथ कर लेते हैं. लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब कुछ एक साथ नियंत्रित होता है, व्यवस्थित होता है, स्वस्थ होता है. योग मुद्रा से अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, पूर्ण मत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, तीन में से कोई भी एक कर ले. अर्धमत्स्येन्द्रासन ही लोगों को कठिन लगता है. पूर्ण मत्स्येन्द्रासन में और थोड़ा कठिन होता है. पूर्ण मत्स्येन्द्रासन में ये जो पैर है ये भी जंघा के ऊपर, फिर ऐसे जैसे आरती जी कर रहे हैं. पूर्ण मत्स्येन्द्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, જે થાય जो हो जाए वही करना. वक्रासन, पूर्ण मत्स्येन्द्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, जितना हो जाए. लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, मेरुदंड का एक साथ व्यायाम होता है. देखने में हल्का लगता है ये अभ्यास, लेकिन पूरे शरीर को साथ देता है. तो ये अर्धमत्स्येन्द्रासन, पूर्ण मत्स्येन्द्रासन आरती जी की